اور جب ہم پوری دنیا میں حسن کے مقابلوں کی بات کرتے ہیں جس میں ہم نے مس ورلڈ کو سن رکھا ہے، جس میں ہم نے مس یونیورس کے مقابلوں کو سن رکھا ہے، انفارچونیٹلی پاکستانی جو ہوتے ہیں، پاکستانی جو ماڈلز ہوتی ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ریزنز کیا ہیں، اور پچھلے کوئی ہم 4-5 سال سے دیکھ رہے ہیں مس پاکستان کا ٹرینڈ، اس کا آغاز ہوا۔ اس میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ہے مس پاکستان ورلڈ اور ایک ہے مس پاکستان یونیورس۔ کل ہم نے آپ کی ملاقات کروائی تھی مس پاکستان یونیورس سے، اور آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں مس پاکستان ورلڈ اینڈ مسٹر پاکستان ورلڈ 2024 سے۔ یہ جو مقابلے پاکستان میں ان کا انیشیٹو لیا گیا، کتنے فائدہ مند ہو سکتے ہیں پاکستانی جو مرد اور خواتین ماڈلز ہیں ان کو ایک انٹرنیشنل لیول پر لے جانے کے لیے۔ ہمارے ساتھ وجیہ احسان موجود ہیں جو کہ مس پاکستان ورلڈ ہیں، اور عثمان جنجوعہ جو کہ مسٹر پاکستان ورلڈ آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں۔ آئی ویلکم بوتھ آف یو ان گڈ مارننگ لاہور، اور آپ دونوں کو بہت بہت مبارکباد، آپ دونوں نے جو یہ ٹائٹلز اپنے نام کیے ہیں۔ وجیہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ مقابلے، اس کے آرگنائزر کون تھے، اور آپ نے کیسے سوچا کہ آپ کو اس مقابلے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ اس کے آرگنائزرز ہماری سونیا احمد ہیں جو کینیڈا میں ہوتی ہیں، اور وہ پچھلے 22 سالوں سے مس پاکستان کا شو جو ہے نا رن کر رہی ہیں، اور ہر سال ایک مس پاکستان ورلڈ یا مس پاکستان یونیورس نکالتی ہیں وہ، اور وہ ان کو انٹرنیشنل پیجنٹس میں بھیجتی ہیں۔ تو انہوں نے ان کا آغاز کیا تھا کافی عرصے پہلے، اور 4 سال پہلے انہوں نے فرسٹ مس پاکستان بنائی تھیں علی چودھری۔ وہ پاکستان کی پہلی مس پاکستان تھی جو پاکستان میں بنی تھی۔ نارملی یہ کراؤننگ سیریمنی ہم کینیڈا وغیرہ میں کرتے تھے، تو پچھلے 4 سالوں سے اس کا ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ اور رہی بات میرے اس شوق کی اور اس پیشے کی، کیونکہ جب اریکا رابن نے یہ ٹرینڈ شروع کیا تھا مس یونیورس کا، اور ہم نے دیکھا، کیونکہ بیسکلی آئی ایم فرام نیو زیلینڈ، تو جب ہم باہر رہتے ہیں اور ہم اپنی لائف میں اتنا بزی ہوتے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو جب اریکا رابن نے ایک ٹرینڈ شروع کیا تھا اور پورا یہ ٹرینڈ وائرل ہوا، تو وہاں پہ بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ آفس میں بیٹھے ہوتے ہو اور لوگ گورے آپ کو بول رہے ہیں کہ پاکستان از ریپرزینٹنگ ان مس یونیورس دس ٹائم۔ تو ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے، ایک فخر فیل ہوتا ہے کہ یار پاکستان کا نام، ایوری بڈی واز کمنگ ٹو می، سینڈنگ می ریلز اینڈ ٹیکسٹنگ می، ڈی ایم می کہ پاکستان ہیز پارٹیسپیٹڈ فرسٹ ٹائم ان مس یونیورس اینڈ شی از سو پریٹی، شی از سو گارجس۔ تو بس اس کو دیکھ کے وائی ناٹ می، لیٹس جسٹ اپلائی۔ اینڈ جب میں نے پیجنٹ کے بارے میں پڑھا، تو پیجنٹ اور ماڈلنگ انڈسٹری بہت الگ ہے۔ We are not models. We work for the nation. We work for the charities. We work for environment. ہمارا کام ماڈلنگ بالکل نہیں ہے، ہمارا کام ایکٹنگ نہیں ہے، ہماری بیوٹی صرف 10% ہوتی ہے۔ تو جب میں نے یہ سب پڑھا، اچھا، یہ اس سے آپ کا کیا مطلب ہے کہ ہماری بیوٹی 10% ہوتی ہے، تو وہ باقی کا 90% کیا ہوتا ہے؟ اوکے، جب اسکورنگ کی بات آتی ہے انٹرنیشنلی، تو ہمارے پاس پوری اسکور بورڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پورا اسکور ایک بورڈ ہوتا ہے جس میں ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے کہ جب آپ ٹریننگ پہ آتے ہو تو ہمارے مشن اور ہمارے ویژن دیکھے جاتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو۔ تو ایوری ڈے وی آر کمنگ آن ٹریننگس، دے آر واچنگ اس۔ جب ہمارے انٹرویوز ہوتے ہیں تو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اگر اتنے پیسے مل جائیں تو آپ کہاں انویسٹ کریں گے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور بیسکلی ہمارے ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل میرا موٹو تھا کہ میں مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ویل بینگ پہ کام کروں۔ میرا موٹو تھا کہ میں سیکشول ہراسمنٹ پہ کام کروں۔ میرا پچھلے 5 مہینوں میں جو میں نے نیوزی لینڈ میں کام کیا، کیونکہ میں مس آکلینڈ بھی کر رہی تھی، اور وہاں پہ میں نے ایک ٹائٹل جیتا تھا مس آکلینڈ سوشل میڈیا کوئین 2024 کا، تو اس میں بھی ہمارا یہی موٹو تھا کہ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو۔ تو جو میرا موٹو تھا وہ یہ تھا مینٹل ہیلتھ اینڈ سیکشول ہراسمنٹ، وی ہیو ٹو اسٹاپ اٹ۔ اور سائڈ بائی سائڈ ہم ورک شاپس کر رہے ہوتے ہیں وومن رائٹس کی، چائلڈ ایجوکیشن کی۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے، کہ آپ اگر کل کو مس ورلڈ جاتے ہو یا مس ارتھ جاتے ہو اور آپ جیت جاتے ہو، تو آپ کو یونائٹیڈ نیشنز وغیرہ جتنی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں ہمارے پاس، وہ آپ کو پاس فنڈنگ کے لیے آئیں گے، تو آپ کہاں انویسٹ کرو گے؟ تو بیسکلی پیجنٹری ہیز اے ٹوٹل ڈفرینٹ موٹو۔ تو اس کو آپ ماڈلنگ سے پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں اس کو سمجھتے ہیں کہ خوبصورت لڑکی ہے، کمپیئر کرتے ہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے اس کا ٹرینڈ کہاں سے آیا؟ جب ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں مس انڈیا بنی، تو اس کے بعد وہ موویز میں آ گئی، یا پہلے انہوں نے موویز میں کوشش کی لیکن ان کو چانس نہیں ملا۔ ایشوریہ رائے ہمارے پاس ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ جب اس کو یہ ٹائٹل ملا، مس ورلڈ یا مس یونیورس دونوں میں سے ایک کوئی ٹائٹل ملا، تو اس کے بعد ان کو موویز کی آفر ہونے لگ گئی۔ اور یہی ایشوریہ رائے اس سے پہلے ہوتی تھی، جب مختلف ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کے پاس
पास काम करने जाती थी कोई लिफ्ट नहीं करवाता था। तो मोस्टली जो ऐसे टाइटल्स विन करते हैं इंटरनेशनल सतह पर, उसके बाद अल्टीमेटली वो हम देखते हैं कि वो मॉडलिंग में आते हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं। हम दूसरे ममालिक की बात करें, सो यहाँ पर भी अगर हम पाकिस्तान की बात करें, सो आई गेस इसीलिए इनको मॉडल्स कंसिडर किया जाता है कि अल्टीमेटली वो लोग भी घूम फिर के वहाँ पर आते हैं, तो शायद इन्होंने भी ऐसे ही आना है। बट व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरिया इसमें आने के लिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अप्लाई करने के लिए? व्हाट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया? अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको इंटरनेशनल पेजेंट्स में जाना है, तो होता ये बेसिकली आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आप कभी भी आप जाएंगे उनकी वेबसाइट पे पढ़ेंगे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड या मिस अर्थ, तो वो आपसे ये कहते हैं कि कॉन्टैक्ट योर नेशनल डायरेक्टर। सो आप नेशनल डायरेक्टर से कांटेक्ट करें और फिर हम आपको लेंगे। तो अगर वो आपको सेलेक्ट करेंगे तो फिर हम आपको लेंगे। तो बेसिकली नेशनल डायरेक्टर हर कंट्री का होता है जो एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, और उसका क्राइटेरिया बहुत कुछ होता है। हर पेजेंट का अपना क्राइटेरिया है। कुछ पेजेंट्स में एज लिमिट है, कुछ में हाइट लिमिट है, उसके बाद ब्यूटी तो चलो एवरीबडी इज़ लाइक, मुझे तो लगता है हर बंदा ही खूबसूरत है। तो उसके बाद इन 3 चीज़ों को निकालने के बाद जब आपकी प्रोफाइल सबमिट होती है तो वो ओवरऑल आपको देखते हैं कि करना क्या चाहता है। फॉर एग्जांपल आप मिस अर्थ पे जा रहे हो, तो हाउ मोटिवेटेड आर यू अबाउट एनवायरनमेंट, तो उसके क्वेश्चंस होते हैं। तो हर किसी के अपने एक डिफरेंट मोटिव है। लेकिन आपका जो मोटो था वो ये था कि आपने मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल हरासमेंट पर काम करना है, जिसकी वजह से आपको ये प्लेटफॉर्म मिलने में मदद मिली। ऑब्वियसली और भी बहुत चीज़ें होंगी, बट इस मोटो की वजह से भी। अच्छा, मैं उस्मान आपकी तरफ आऊँगी। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि ये टाइटल आपने विन किया। बेसिकली आपका ताल्लुक कहाँ से है? पाकिस्तान से है या आप किसी और मुल्क, मतलब पाकिस्तानी नयाद हैं लेकिन किसी और मुल्क में रहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं पाकिस्तान से हूँ, बट आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन लंदन। तो मैं लंदन से हूँ। मैं वहाँ पे फ़ैशन मॉडल हूँ। सो माइन इज़ डेफिनेटली कि मैं फ़ैशन मॉडलिंग करता हूँ। पिछले बहुत टाइम से मॉडलिंग करता आ रहा हूँ मैं। तो फिर उससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड। So why did you think that you must participate in this competition, Mr. Pakistan competition? जी, तो बिकॉज मैं बहुत टाइम से मॉडलिंग इंग्लैंड में की है। मैंने बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक रनवे, कैटवॉक्स, एशियान सारी कर ली हैं। तो मुझे था कि मैं मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड पाकिस्तान आके रिप्रेजेंट करूं पाकिस्तान को। तो मेरी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। मेरी ये रूट्स हैं, मेरे मॉम एंड डैड सारे इधर से हैं। तो मेरा था कि मैं क्या कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए। अब इंडस्ट्री में जो मैं करता हूँ, फिर ये अपॉर्चुनिटी आई मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड। तो दिस इज़ वाई मैंने ये किया है कि अच्छा, इसका क्राइटेरिया फॉर मेन क्या है? जी, मैन इसका ऑफ कोर्स दे लुक फॉर मॉडल्स, दे लुक फॉर पीपल इन इंडस्ट्री में जो होते हैं। तो मेन का ये होता है कि आपकी बैकग्राउंड होनी चाहिए मॉडलिंग में से, इन चीज़ों में से आप हो, तो वो आपको देखते हैं। आप ऑडिशंस में जाते हो, आपके इंटरव्यूज होते हैं। हाइट, कोई फिगर, कोई आपके सिक्स पैक्स, कोई जिम शिम आप करते हो, कोई ऐसा भी क्राइटेरिया होता है? जी, आई मीन इन अ वे ज़रूर वो देखते हैं। दे वांट द बेस्ट। उनको एक बेस्ट मॉडल चाहिए, एक बेस्ट चाहिए। तो ऑफ कोर्स हाइट, आपकी फिजिक, आपकी लुक्स, आपकी हर चीज़ कंसिडर होती है इसमें। तो आई थिंक यस, सारा कुछ देखा जाता है। सो मोस्ट डेफिनेटली दे वांट द बेस्ट, कि जो सबसे बेस्ट है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, जो सबसे बेस्ट है। सो इट्स अ वेरी बिग अमेजिंग टाइटल। तो इन माय ओपिनियन हर चीज़ देखी जाती है। और जो मैं स्टेजेस से गुजरा था, उन स्टेजेस के लिए उन्होंने एक तरह से हर चीज़ देखी थी। सो यस, फॉर श्योर एवरीथिंग काउंट्स। एंड ऑफ कोर्स एक रीज़न होना चाहिए, बट द मेन मेरा जो रीज़न है इज़ बिकॉज आई एम अ फैशन मॉडल। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से हूँ। सो यस, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं वजिया आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर मिस वर्ल्ड के मुकाबलों में, मिस यूनिवर्स के मुकाबलों में पाकिस्तानियों की एक्सेस वहाँ तक नहीं थी। व्हाट वाज द रीज़न कि पाकिस्तानी, हमने कोई भी खातून, या आप उनको मॉडल्स कह लें या आप उनको वैसे ही किसी भी किस्म की मीडिया पर्सनालिटी कह लें, दे नेवर हैड दिस काइंड ऑफ एक्सेस। व्हाई वाज दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना एक्सपोजर ही नहीं है। अब हम डेफिनेटली हम एक मुस्लिम नेशन है, ऊपर से हम पाकिस्तानी हैं। तो जो उनकी ड्रेसिंग होती थी पहले इंटरनेशनल पेजेंट्स की, उसमें हमारे लिए कुछ राउंड्स मैंडेटरी होते थे और उनकी बड़ी रिक्वायरमेंट्स थी कि आपने यही पहनना है। तो जब से पिछले आप 4-5 साल में देखेंगी, वर्ल्ड में वुमेन राइट्स के लिए बहुत आवाज़ उठी है, फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा हो चुका है फेमिनिज्म। तो उन्होंने जब देखा है कि हर लड़कियाँ इतनी इंडिपेंडेंट होती जा रही है, तो जब कंट्रियों ने उनके अगेंस्ट केस किया था और उनको अपील की थी कि आप इट्स अनफेयर कि आप हमारे कंट्री से कोई लड़की लेते ही नहीं हो बिकॉज आपकी इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग है, तो फिर वहाँ से उन्होंने हमारे लिए एक डोर खोला था कि वी विल नॉट फोर्स एनीबडी
टू वेयर एनीथिंग, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन वेयर, और हम उस बेसिस पे स्कोर डिडक्ट नहीं करेंगे। तो उस राउंड में से हमारे यहाँ स्कोर डिडक्शन निकल गई थी। तो आप अब देखिए जैसे अरिका रॉबिन थी, उन्होंने बड़े अच्छे से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। आई लव्ड हर बरकीनी जो उन्होंने पहनी थी अपने स्विम वेयर राउंड में, शी वाज फुली कवर्ड, और मुझे लगता है कि वो बड़ा अच्छे वे में उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। यानी आपका ये कहना है कि पहले ऐसे होता था कि जो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के मुकाबले होते थे उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिवीलिंग वल्गर किस्म की ड्रेसिंग करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से हमारी बहुत सी ख़वातीन जो थी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन ये वैसे मैंने अक्सर देखा है, टू बी अ मॉडल यू शुड वेयर लाइक सम काइंड ऑफ रिवीलिंग ड्रेसेस, यू शुड वेयर सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मॉडर्न ड्रेसेस। अच्छा, मॉडर्न ड्रेसेस में अक्सर ये होता है कि मॉडर्न ड्रेसिंग एंड आई बिलीव वल्गर ड्रेसिंग दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो अगर हम वल्गैरिटी की बात करें तो अभी भी हमारे यहाँ पर बहुत से मॉडल्स ऐसे हैं जिनसे ये डिमांड की जाती है कि भाई आपने इस किस्म की ड्रेसिंग पहनी है। ये मॉडलिंग में ऐसा क्यों होता है? यानी आपका फिगर अच्छा है, आपकी हाइट अच्छी, आप वैसे खूबसूरत हैं, यू आर द ब्यूटी विद द ब्रेन, तो अगर आप कवर्ड ड्रेस भी पहनते हैं तो आप खूबसूरत हैं तो खूबसूरत ही लगेंगे। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, ये मॉडलिंग में या इस किस्म के मुकाबलों में रिवीलिंग ड्रेसेस पहनने का रिवाज क्यों था? मुझे लगता है बेसिकली ये हर एक लड़की की अपनी चॉइस है। जैसे आज मुझे कोई बोलेगा तो मेरे पास मेरा अपना जवाब है कि मुझे नहीं करनी है, और मुझे लगता है कि हमारे पास पहले इतनी लड़कियों के पास इतनी इंडिपेंडेंस नहीं थी, इतनी वॉइस नहीं थी कि वो मना कर सकें। दे वर स्केयर्ड कि यार मना कर दूंगी तो जॉब से निकाल देंगे, शूट ऑफर नहीं देंगे, या मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन अब वो ज़माना नहीं है। अब जो मॉडल्स कर रही हैं, जो पहन रही हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है। नो बडी इज़ फोर्सिंग देम, दे गेट एन ऑफर कि आपको ये करना है एंड यू हैव एन राइट कि नहीं मुझे नहीं करना है और मैं नहीं करूँगी, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। इवन मैंने न्यूजीलैंड में भी कितने बड़े बड़े डिज़ाइनर के साथ काम किया है। जब मैंने मिस ऑकलैंड किया था तब भी मैंने उनसे सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि मॉडर्निज्म इज़ गुड बट वल्गैरिज्म आई डोंट वांट टू गो ऑन द वल्गैरिटी कि आप मुझे बोल रहे हो कि ये पहनना है वो पहनना है। तो मैंने उनको क्लियर और उन्होंने बड़े हैप्पीली एक्सेप्ट किया था। और आज भी पाकिस्तान में भी जैसे, लेकिन आपको नहीं लगता कि फिर इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर जो ख़वातीन थोड़े से रिवीलिंग ड्रेसेस पहनती हैं, जो समहाउ नेकेड भी हों या बहुत ही ज़्यादा किस्म के हमारे ट्रेडिशंस को हमारे कल्चर के साथ मैच ना करते हों, प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाती है आगे आने की? चाहे वो मार्क्स डिडक्ट नहीं करते बट समहाउ समवेयर इन देयर हार्ट ये चीज़ होती है कि भाई इसको आगे लेकर आना है। कहीं ना कहीं शायद ये होता है आज भी। तो अगर आज हम इसके अगेंस्ट वॉइस लाइक अवेयरनेस क्रिएट करें या लोगों को बताएं कि वी विल कम फॉरवर्ड एंड वी विल गिव यू बेटर आइडियाज़, वी आर बेटर देन एवरीबडी एल्स, देन लाइक वी जस्ट डू नॉट हैव बॉडी। तो मतलब आप अगर बात करें तो बहुत चीज़ें बदल सकती हैं। इट्स जस्ट अ स्टार्ट। पिछले 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया, आप देखें तो अगले आने वाले सालों में बहुत कुछ बदलेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी उस्मान के मर्दों के लिए मॉडलिंग की फील्ड में क्या क्या मुश्किलात आती हैं? एक तो हमने रिसेंटली मारिया बी का भी एक मैं इंटरव्यू देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे 80% के करीब जो LGBT हैं इस इंडस्ट्री में, शोबिज़ इंडस्ट्री में और वैसे फ़ैशन इंडस्ट्री में। सो व्हाट डू यू थिंक, मॉडलिंग की जब हम फील्ड की बात करते हैं औरतों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बट मर्दों के लिए क्या मुश्किलात होती हैं? जी से मर्दों के लिए भी बहुत मुश्किलात एज इन ये सेंस होती हैं, अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस बहुत आते हैं। किस वजह से? जिस तरह आप जाते हैं डिफरेंट शूट्स पे जाते हैं, डिफरेंट एजेंसीज़ पे जाते हैं, तो मॉडल बनना लड़कों के लिए भी इतना इजी नहीं है। बहुत स्टेजेस होते हैं, बहुत क्राइटेरिया होता है, आपको मीट करना पड़ता है। तो मुश्किलात ये होती हैं कि एवरीवन वांट्स द ईजी, उनको होता है कि हम मॉडल बहुत जल्दी बन जाएं, 1-2 शूट करें बन जाए, पर अनफॉर्चुनेटली ये केस नहीं है। आपको एक बहुत पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है अपना, आपको बहुत शूट्स करने पड़ते हैं, आपको बहुत, एक तरह से मैंने म्यूज़िक वीडियोस भी की हुई हैं, बहुत स्टेज कैट वॉक्स एंड बहुत आपको एक स्टेज पे जाना पड़ता है। उनको पता होना चाहिए कि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आपने हर एक सिचुएशन हैंडल कर ली हुई है। तो बस ये आई थिंक मुश्किलात से। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि मॉडल्स को जो मेल हजरात होते हैं, मेल मॉडल्स होते हैं, उनसे भी कुछ ऐसी अनरियलिस्टिक डिमांड्स की जाती हैं जिनको वो पूरा नहीं कर सकते। लाइक सेम जेंडर से आपको ऑफर्स आना, एक रिलेशनशिप की ऑफर आना, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी, हम ऑब्वियसली ये चीज़ें इतनी आम तो नहीं है बट सुनने में ऐसी चीज़ें बहुत आती हैं। तो क्या वाकई मर्दों के लिए भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं? मैंने सुना है पाकिस्तान में आई थिंक ये कुछ ज़्यादा इसका है, क्योंकि काफ़ी मैंने यहाँ पे सुना है, बट इंग्लैंड में ऐसा कोई सुना नहीं है। इट्स नॉट लाइक
it's not there is stuff like this there as well, but it's not कि वहाँ पे rules and regulations हैं, वहाँ पे एक criteria आपको एक तरह से तरीके से होता है, ये नहीं कि ये आपको एक relation बनाना है या आपको उनके साथ कोई ऐसा काम है तो आपको मिलेगी modeling में. बहुत इंग्लैंड में एक तरीक़ाकार है, एक proper rules हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे ऐसी I've never had to go through this, तो मुझे लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल आपने जो अपने नाम किया है, इसके बाद आपको इसका क्या फ़ायदा होगा और इस टाइटल को विन करने पर आपको रिवॉर्ड क्या मिला? जी, तो मेरा ऑफ कोर्स यही है क्योंकि मैंने बाकी सारा कुछ मॉडलिंग में कंप्लीट कर लिया है और मेरा ये स्टेप था कि व्हाट शैल आई डू नेक्स्ट, और अब मेरा था मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड मैंने जीतना है, विच आई हैव, और मेरी अब नेक्स्ट स्टेप्स ये हैं कि इस इंडस्ट्री में मैंने ग्रो होना है. तो ऑफ कोर्स जैसा हम पहले मेंशन किया था, दिस इज़ माई वे ऑफ गेटिंग इनटू द एक्टिंग, मेरे ड्रामास, फिल्म्स, ऐसी ऑफ कोर्स दिस इज माय नेक्स्ट एम. तो मेरा वही बात आ गई जो हम स्टार्ट में कर रहे थे कि नॉर्मली ऐसे लोग जो इस किस्म के टाइटल विन करते हैं, अल्टीमेट उनका गोल स्क्रीन पर्सन बनना ही होता है, मॉडलिंग में आना होता है, एक्टिंग में आना होता है. आप ऐसे नहीं चाहते, लेकिन बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं, जैसे अभी उस्मान भी जरूर. आई मीन इसका एम जो होता है प्रीटी मच यही होता है कि अपनी कंट्री रिप्रेजेंट करो और उसके बाद ऑफ कोर्स गेट इनटू ड्रामास हो गए, मूवीज हो गए, एक तरह से प्लेटफॉर्म होता है कि आप उसके अंदर नेक्स्ट जाए. डिड यू गेट एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड आफ्टर विनिंग दिस टाइटल? रिवॉर्ड आई एम हैविंग, मतलब ये होता है ना कि आपको कभी-कभी इन द फॉर्म ऑफ मनी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है, कोई इनामी रकम भी होती है, सो ऐसी कोई चीज़ थी? नो सॉरी, ऐसा नहीं होता. नेशनल लेवल पे ऐसा नहीं होता. इंटरनेशनल लेवल पर होता है, इंटरनेशनल लेवल पर होता है, लेकिन नेशनल लेवल पर ऐसा नहीं होता. आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? मेरे सॉरी थोड़ा गला खराब हो रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड. मेरे फ़िलहाल आगे पेजेंट्री को कंटिन्यू करने के प्लान्स हैं. अगले 1 साल तक मेरा यही प्लान है कि जस्ट इन्वेस्ट ऑन वुमेन राइट्स एंड मेंटल हेल्थ, जितना हो सकता है लेट्स क्रिएट द अवेयरनेस. उसके बाद अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को कभी यूज़ करना चाहूँ एक्टिंग में, वो मेरा भी कोई प्लान नहीं है. बिल्कुल ठीक हो गया. सो थैंक यू सो मच. वजिया एहसान और उस्मान जंजुआ हमारे साथ मौजूद थे. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, और जो आप करना चाहते हैं उसमें मदद जो है वो कुदरत की शामिल हो. व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे. आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद.